First of all, a refreshing and charming good morning to one and all present here. My name is Bhuvnesh, and I will be continuing mathematics for you, class third. So, in last class, we have learned how to convert fractions from the chart, pie chart. So today we will learn some more different types of variations from that point. Okay, first we recall our yesterday's class. So there is a figure here. You can see it's a rectangle and it is divided into four equal parts. Okay, now there is one part of these portions is shaded by red color, and we have to write the fraction of the shaded part, colored part. Okay, the last question is write the fraction. Okay, we have to write the fraction of the colored part, colored, colored part. So what is the method to write the fraction? So if it is asking about the colored part, so in fraction we will write the number of parts colored at the numerator. So how many parts are colored? One part is colored. Out of how many total parts are there? There are total 4 parts. So one part is colored out of 4 parts. So the fraction of colored part is 1/4. So this type of questions we have discussed in earlier class. Suppose we have one more type of figure here is like we have a circle and it is divided into 8 parts. 1 2 3 4 5 6 7 8. So total number parts are 18, and suppose 1 2 3. Okay, 3 parts are colored. So how we will write the fraction of colored part? So we have to write the fraction of colored portion या part. So we will write in the same way we write earlier. In numerator we will write the total number of colored parts. So how many parts are colored? 3 parts. And what are the total portions of that figure? So there are 8 portions, so the fraction of the colored part will be 3/8. And you know the upper portion we call it numerator, and the lower portion we call it denominator. So till last class we have learned up to this topic. Now in last class there is one question arrived that sir, how we are taking only the colored portions but not the non-colored portions. So question, it depends on the question. Suppose in this question one portion is colored. So if question is asking, okay, question can be of different types. If question is asking the fraction of colored portion या colored part, so we will write the fraction in this way. The total number, whatever it is asking, colored portion पूछ रहा है, तो how many portions are colored? 1. And what are the total portions? 1 2 3 4. Again total portions are 8, so fraction will be 1/8 for the colored portion. But if question is asking what is the fraction
of non-colored part, non-colored, COLOURED, non-colored portion. So we have to count the non-colored part, like out of 8 1 is colored, so 7 portions are not colored, so we will write in the numerator 7, and total portions will be written in the denominator as such we do in as before. So denominator में always total portions आएंगे, total portions, और न्यूमरेटर में जो भी पूछा गया है कलर्ड पोर्शन है तो नंबर ऑफ कलर्ड पोर्शंस, नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट। अगर जैसे यहाँ पे नॉन कलर्ड पोर्शन पूछा है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ नॉन कलर्ड पार्ट, और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, टोटल पोर्शंस रहेंगे, टोटल पोर्शंस। जैसे कि इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, सपोज आपने मैथ्स का टेस्ट दिया और आपके टेस्ट में आए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे 10 और आपने स्कोर किया 8 मार्क्स स्कोर किए, तो वो भी क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। आप मार्क्स लिखते हो, जैसे कि आपके टेस्ट में 8 मार्क्स आए, यू स्कोर्ड 8 मार्क्स, सो ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मीन्स आपने कितने मार्क्स गेन किए, वो ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर में, और टोटल मार्क्स जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो ये भी क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है जो हमें क्या बताता है, इट विल टेल अस हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड एंड आउट ऑफ हाउ मच मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने हैं और उनमें से आपने कितने लिया। सो ये फ्रैक्शन हमें ये बताता है। तो इस तरह से फ्रैक्शन का हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ होता है। चलिए अब बात करते हैं हम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शंस, सबसे पहले फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसमें एक क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, और एक क्या होता है, न्यूमरेटर। मतलब एक संख्या ऊपर होगी, सपोज मैंने यहाँ पर p लिख दिया, तो p क्या है, न्यूमरेटर, और q क्या है, डिनोमिनेटर। ये जानने के बाद अब हम, अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि हमें एक फिगर दे दी गई है और हमसे क्या पूछा गया है, फ्रैक्शन पूछा गया है। बट अब क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। अब हमारे पास, अब हमें फ्रैक्शन दे दिया गया है और हमसे कह दिया गया है कि यू हैव टू शो इट बाय डायग्राम, आपको डायग्राम से इसे रिप्रेजेंट करना है। सपोज हमें फ्रैक्शन दे दिया 1/3। ओके, अब हमें इससे क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो 1/3 इज द फ्रैक्शन। सो वी नो दैट द न्यूमरेटर इज द शेडेड पार्ट एंड डिनोमिनेटर इज द टोटल पार्ट। ये टोटल पार्ट है और ये क्या है, शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट, और हमें बस अब रिप्रेजेंट कर देना है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाएं और उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, और क्या करें फिर हम उसका कितना पार्ट शेड करना है, 1 पार्ट। तो हमने क्या कर दिया, 1 पार्ट उसका शेड कर दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम इसको क्या बनाएं, इस तरह से रेक्टेंगल बनाएं, हम सर्कल भी बना सकते हैं। सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में, ध्यान रखना इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और कितना पोर्शन शेड करना है, जो न्यूमरेटर में दिया है। तो 1 पोर्शन को हम क्या कर देंगे, कलर्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे बाय फिगर। नाउ वी टेक एन अनदर एग्जांपल, लाइक वी हैव नंबर 2/5। ये फ्रैक्शन गिवन है और हमें इससे क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है बाय अ फिगर। सो हम कोई भी फिगर बना सकते हैं, कैसी भी फिगर बनाएं आप, बस उसमें क्या करना है, इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर आप सर्कल बनाते हैं तो बेटर होता है 5, टोटल 5 पोर्शंस करने हैं इक्वल, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3, 4 एंड 5, हो गए 5 पोर्शंस। ओके, और हमें कितने पोर्शन शेडेड करने हैं, तो इसमें शेडेड पोर्शन कितने हैं बेटा, 2 शेडेड
2 हैं और टोटल 5 हैं। सो हमने टोटल ड्रॉ कर दिए, शेडेड ड्रॉ करेंगे 1 एंड 2। ओके, 2 पोर्शंस शेडेड हो गए। इसी को मैं इस तरह से भी बना सकता था इजी वे में। एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें कितने पोर्शंस किए, 5 पोर्शंस किए, और फिर क्या करेंगे, हम इसको कलर कर देंगे। कितने पोर्शंस को, 2 पोर्शंस को कलर कर देंगे। अब कोई भी 2 पोर्शंस को कलर कर दीजिए। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा अ फ्रैक्शन विद अ डायग्राम। ओके, so this is all for today. A worksheet will be given in your groups and you will solve that worksheet according to the question. If question is asking that you have to you have to represent fraction into figure, you will do in this way. If in question figure is given and you have to represent it in fraction, then you will do it in this way. So thank you for all for today's class. I hope it will be very helpful to you, this video, and have a nice day. Thank you all.